امام حسن امام حسین سب مانتے ہیں. لیکن عزیزان محترم یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ماننے سے کام نہیں چلے گا, یہاں پہچاننا ہے, پہچاننا کہ کون پہچانتا ہے. تو اب عزیزان محترم امت مسلمہ میں سب کے سب جو ملتے ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں, مانتے ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. عزیزان محترم امیر المومنین کو فاتح خیبر سب مانتے ہیں, امیر المومنین کو مرد میدان سب مانتے ہیں, امیر المومنین کو ولایت غدیر سب مانتے ہیں, امیر المومنین کو حسنین کباب سب مانتے ہیں, حسنین کو رسول کا بیٹا سب مانتے ہیں, شہزادی فاطمہ کو رسول کی بیٹی سب مانتے ہیں. تو عزیزان محترم سب مانتے ہیں. بس یہی مسئلہ ہے کہ جب مسلمانوں میں دوسروں کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کہا جاتا ہے رضی اللہ, اور جب علی کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ. ایک سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد محمد. یہ مسئلہ ہے عزیزان محترم. سوال ماننے کا نہیں ہے, سوال ہے پہچاننا, معرفت ایمان. بھائی دیکھیے نا, ہم جو عبادت کرتے ہیں سب عبادت کرتے ہیں, پورے جتنے بھی مسلمان ہیں سب پوری طریقے سے عبادت کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ نور میں آپ کو ملے گا, آپ سورہ نور جا کے دیکھیے گا تو پروردگار عالم کا من السماء والارض, تو یہ آسمان اور زمینوں میں جتنے بھی پرندے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چرند پرند جتنے بھی ہیں, اللہ کی جتنی بھی مخلوق اس کائنات میں وہ سب اپنے پروردگار کی عبادت کرتی ہے. اور ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے. دیکھیے پرندوں کے لیے سورہ نور میں پروردگار عالم نے کہا یہ پرندے جو ہیں یہ عبادت کرتے ہیں, اور جتنے بھی چرند و پرند جتنی بھی ہماری مخلوقات ہیں وہ سب ہماری عبادت کرتی ہے. اور اس کے ساتھ لکھا کہ جب یہ پرندے آسمان میں پرواز کرتے ہیں, جب یہ پر کھول کے اڑتے ہیں تو یہ پر کھول کے اڑتے نہیں ہیں, یہ ہماری نماز پڑھتے ہیں. آپ نے پرندوں کا طریقہ دیکھا جو قرآن نے ابو الفضل عباس کا, کہ کبھی آقا ہی, ہمیشہ آقا ہی کہا, کبھی بھائی کہہ کے پکارا ہی. جناب زینب کو شہزادی کہا, جناب ام کلثوم کو شہزادی کہا, اور امام حسین کو آقا کہا. جناب عباس, وہ عباس کہ جب 28 رجب کو امام حسین کو دربار میں بلایا گیا ابن زیاد, اور ایک مرتبہ جب کہا کہ آپ بیعت کیجئے, اور اگر بیعت نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ ان کو ابھی قتل کر دے, اگر ابھی نہیں قتل کرا تو پھر یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. بس حضرت عباس کو جلا لایا, کہا کس کی بجائے جو میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے اوپر حملہ کرے. ایک مرتبہ امام حسین نے روکا, بھیا عباس ابھی جنگ نہیں کرنی ہے, ابھی کربلا دور ہے, کربلا نہیں ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا جب لگامے پڑے تو انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا, تو جناب عباس کو جلا لایا, مرتبہ تلوار لے کے بڑھے تو امام حسین نے روک دیا تھا کہ بھیا عباس ابھی کربلا نہیں ہے, ابھی
जंग का मौका नहीं है। और अब अजीजान मोहतरम, शब आशूर, असर आशूर जो हमला हुआ है, उधर से हमला जब हुआ है तो एक मर्तबा कर हजरत अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में आए हैं और आने के बाद कहा है, आका हमला हो गया। तो क्या ये इमाम हुसैन को हमला होने की खबर देने आए? नहीं, इमाम हुसैन को बताने आए हैं आका हमला हो गया। आप कहते थे ना कि हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, अरे आका अब तो हमला हो गया, अब तो इजाजत दे दीजिए, अरे मैं इन सबको एक ही बार में खत्म कर सकता हूं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास ऐसा करो, इनसे जाके एक रात की मोहलत ले लो, मैं ये चाहता हूं कि अपने रब की एक रात और इबादत कर सकूं। अल्लाह अकबर। लीजिए, वो अब्बास कि जिनके सीने में जंग का बलबला हो, वो अब्बास जो जंग के लिए तैयार हो, उसने अपने आप को कैसे ढाला होगा। एक मर्तबा वापस आए और आने के बाद कहा कि मेरा आका कहता है कि एक रात की मोहलत दे दो, हम एक रात अपने रब की इबादत करना चाहते हैं। लीजिए अज़ीज़ान मज़लूम के करबला, एक मर्तबा सुबह आशूर नमूदार हुई, अली अकबर ने ऐलान की और उसके बाद शहादतों के सिलसिले शुरू हुए। असहाब की बारी आई, असहाब के बाद अंसार की बारी आई, और अब वो मौका भी आया कि एक मर्तबा जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा कि आका अब हमें भी मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास मैं तुम्हें कैसे जंग की इजाजत दे सकता हूँ, अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। बस इतना कहना था। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने दाईं तरफ देखा, एक मर्तबा बाईं तरफ देखा, एक मर्तबा सामने की तरफ देखा, एक मर्तबा पीछे की तरफ देखा, और अजीब जुमले कहे कि आका अब वो फौज ही कहाँ है कि जिसका मैं अलंबरदार। अभी भाइयों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि अली की पोती मुश्किल कुशा की पोती मुश्किल कुशाई के लिए आ गई। एक मर्तबा जनाब सकीना खेमे के दर से बाहर, हाय प्यास, अलताज। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा जनाब सकीना को देखा, एक मर्तबा जनाब अब्बास से कहा कि भैया अब्बास देखो, ऐसा करो इन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम, इन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। लीजिए नज़ारो, जनाब सकीना को जनाब अब्बास ने गोद में लिया, खेमे के अंदर गए। जनाब अब्बास, जनाब सकीना ने अपनी खुश मशतीले को जनाब अब्बास के अलम में टांग दिया। आप देखते हैं ना, अलम के अंदर एक मश्क होती है, अरे ये वो मश्क है जो जनाब सकीना ने अपने चचा अब्बास के अलम में बांधी थी। हाय जनाब सकीना, अरे वो मश्क बांधी थी, खोलेगा कौन? अजरो को बोल अल्लाह। इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को रुखसत किया। मुझे नहीं पता कि कैसे रुखसत किया। जनाब अब्बास का अलम है, अलम में मशकीज़ा है। और अब जब जनाब अब्बास नहर फुरात की तरफ बढ़े हैं तो जनाब अब्बास का रौब का ये दबदबा था कि जैसे ही जनाब अब्बास नहर फुरात की तरफ बढ़े हैं, फौज फुरात के ऊपर जो फौज बैठी हुई थी वो रास्ता छोड़ के भाग गई, उसने फुरात को खाली कर दिया। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने घोड़े को नहर फुरात के अंदर उतार दिया, और नहर फुरात में उतारने के बाद एक मर्तबा मशकीज़े को भरा, और भरने के बाद एक मर्तबा घोड़े से कहते हैं, मेरे घोड़े तू भी तो कई दिन का प्यासा है, तू पानी पी ले। अदादारो घोड़े ने पानी नहीं पिया। उसके बाद मशकीज़े को अपने कंधे पे डाला और एक मर्तबा नहर फरात के पानी को चुल्लू में लिया। चुल्लू में लेने के बाद इमाम जनाब हजरत अब्बास कहते हैं, फुरात अरे वाह हो तुझ पर, अरे हुसैन के बच्चे प्यासे हो और तू लहरें मारता रहे, और ये कह के वापस फुरात के ऊपर मार दिया। अदादारो, अब जो जनाब सकीना जिसने अपने चचा को मशकीज़ा दे के पानी के लिए भेजा था, जो बच्चे अलतश कर रहे थे, उन सब बच्चों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कहती है, बच्चों देखो, अब अलतश ना कहो, मेरा चचा पानी लेने गया है, वो तुम सबके लिए पानी लेकर आ रहा है। देखो अलतश की आवाजें बंद कर दो, अरे मेरा चचा आएगा, तुम्हें सैराब करेगा। ये जनाब अब्बास एक मर्तबा मशकीज़ा लेके निकले, अलम को उठाए हुए, एक मर्तबा घोड़े को लेके ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़े। जैसे ही बढ़े, इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर ये मशकीज़ा ख़याम तक पहुंच गया
मार सकते। लीजिए, जो भागी हुई फौज थी वो सामने आई। हाँ दादारो, एक मलून ने ऐसा वार किया, जनाब अब्बास का दाया बाजू कम कर दिया गया, बाएं बाजू में मशीदे को लिया, एक मर्तबा बाएं बाजू भी कलम कर दिया गया। दादारो, जनाब अब्बास ने मशीदे को दांतों से पकड़ा, चाहते ये हैं कि एक मर्तबा ये मशीदा ख़याम तक पहुंचा दे, लेकिन दादारो एक मर्तबा एक नेज़े से तीर निकला, मशीदे में बेबस हो गया, इधर पानी बहा, जनाब अब्बास की हजरतें बह गई। हाँ दादारो, जनाब अब्बास ने वापस घोड़े को फुरात की तरफ मोड़ा, जैसे ही मोड़ा, अरे कमीन गाह से किसी मलून ने सर पे गुर्ज का वार किया। जनाब अब्बास घोड़े पे नहीं रुक सके, एक मर्तबा घोड़े से नीचे आए, एक मर्तबा भाई को आवाज दी, इमाम हुसैन। जनाब अब्बास के लाशें तक पहुंचे और पहुंचने के बाद एक मर्तबा जनाब अब्बास के सर को अपने जानू पे रखना चाहते हैं। जनाब अब्बास अपने जानू को नीचे रख लेते हैं, फिर सर को जानू पे रखते हैं। एक मर्तबा कहते हैं, मेरे भैया आखिर क्या वजह है? कहा आका, गुलाम के सर को क्या जानू पे रखते हैं? कहा नहीं, तुम तो मेरे भाई हो। भैया के सर को जानू पे रखा। और एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, ए भैया अब्बास, देखो कोई अगर वसीयत हो, कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे बयान करो। कहा आका, मेरी दो वसीयतें हैं। कहा पहली वसीयत तो यह है कि मेरे लाशे को खेमे तक न लेके जाइए, सकीना से शर्मिंदा हूं। पानी का वादा कर आया था, पानी नहीं पहुंचा सका। और दूसरी वसीयत यह है, ए आका, जब इस दुनिया में आया था सबसे पहले आपकी ज़ियारत करी थी, अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि आपकी ज़ियारत कर लूं। कहा भैया अब्बास, अरे हम तुम्हारे सामने हैं, हमारी ज़ियारत कर लो। कहा आका, अरे एक आंख में तीर है, एक आंख में खून जमा है, मुझे कुछ नजर नहीं आता। इमाम हुसैन ने अब्बास की आंख से खून साफ किया। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़ियारत करी। और एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, भैया अब्बास, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश हमारी भी है, वो पूरी कर दो। कहा आका हुक्म कीजिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं, भैया अब्बास, बचपने से आज तक जमाना गुजर गया, उम्र गुजर गई, कभी तुमने भाई कहकर नहीं पुकारा, हमेशा आका कहकर पुकारा। ए भैया अब्बास, अरे मैं ये चाहता हूँ आखिर वक्त में, अरे मुझे भाई कहकर पुकार लो। जी दादारो, एक मर्तबा जनाब अब्बास ने अपने जिस्म की सारी कुव्वत को इकट्ठा किया, अपने आका हुसैन की तरफ देखा, एक मर्तबा कहा, भैया रूह जन्नत को बर्बाद कर गई। इमाम हुसैन ने आलम अब्बास लिया, क़याम की तरफ चले। जनाब सकीना ने बच्चों से कहा, देखो मेरा चचा आ रहा है, वो देखो मेरा चचा आ रहा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन जब अलम लेके पहुंचे, जनाब सकीना ने फौरन कहा, बाबा मेरा चचा कहाँ है? ए बेटी, अरे तेरा चचा मेरे फुरात पर बाजू कटाए सो रहा।